Asalamoalikum everyone. I hope all of you are having a great day. Today we're going to talk about additional subjects that Cambridge allows you to take. There is actually no limit to the additional subjects you're allowed to take. That is a blessing as well as it is a curse. Blessing because you do not have any restrictions. You can take different amount of subjects, different variety of subjects, but a curse because that leads to a hell of a lot of confusion. So now, Exactly, and for this and then universities जब आप बाद में apply कर रहे होते हैं, they expect you to have lots of additional subjects. वो आपके लिए बाद में मसला बन जाता है, especially because a lot of people don't know कि additional subjects रखने से आपको एक बहुत बड़ी edge मिलती है. यस अच्छा सबसे पहले जिस तरह लीजा ने बात की इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट ज़रूरी क्यों है Number one, when you're not sure of the career that you're going to pursue, for example, I wasn't sure if I wanted to be a doctor, if I wanted to pursue medical, biology, etc., or if I wanted to go for STEM, like computer science, physics, and chemistry. I took up both the subjects, biology and computer science, and now I'm studying computer science, even though I had a better grade in biology. That doesn't make any sense. But I think computer science is more me. I don't really like studying about the human body, so I went for it. You can also do the same. You can also take up accounting and economics or business, etc., to just explore different fields and to know where you want to go, what you want to study in A levels. Also, a very important thing for those who are trying to apply abroad. Um, and a very important point for those who want to apply abroad, like for example US, Canada, UK, they really appreciate when you take as many subjects as you can. For example, the best range personally I suppose is from 9 to 12. You take up 9 subjects, or you take 10, 11, or maximum 12, because when you take more than 12 it feels like the child is confused and he doesn't have a sense of direction. But when you take 11 to 12 subjects, like for example, if you've taken up computer science, you've taken up additional mathematics, environmental management, then that really shows how determined you are to study more and how well you can cope up with the stress of university. And also a very important point, that some subjects, for example, maths, really help you with A levels. Like for example, in A level maths, you'll really benefit if you've studied maths, like I did. I did that as well. I didn't take up the exam. Like for example, I didn't give the exam of maths, but I did study maths in O levels, and that really helped me in A levels. So both of us, we recommend that you take up at least one extra subject. It could be any subject, for example, maths, environmental management, or any subject related to your field, like IT, psychology, etc. But you should never let them compromise your other 8 subjects. Like for example, if you're studying for your extra subject, then that leads to then if it leads to giving less attention to your actual 8 subjects, then please do not take up any extra subject if you cannot manage it. And also it leads to a great amount of stress, which Aliza will now tell you about. हाँ, तो अच्छा, अभी मैं सब बात करी थी एटलीस्ट वन की. उसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए. इफ़ यू आर वीक इन मोर देन वन सब्जेक्ट जो आपके कंपल्सरी हैं आउट ऑफ द 8, तो एडिशनल सब्जेक्ट मत लें, ठीक है. देयर इज़ नो वे आप अपनी बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके एडिशनल सब्जेक्ट्स के थ्रू अपनी ट्रांसक्रिप्ट को बेहतर दिखा सकेंगे, ठीक है. तो जो आपके ज़रूरी हैं उनमें तो आपका अच्छा ग्रेड होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स, तो फिर ठीक है, आप एडिशनल सब्जेक्ट्स लें. और यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि एडिशनल सब्जेक्ट है तो फिर एडिशनल बर्डन होगा, यू कांट एस्केप इट, ठीक है. तो स्ट्रेस आएगा उसके साथ, यू बी वर्किंग ऑन इट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. तो एक वो मसला है. दूसरा ये कि नॉट ओनली विल बी यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्टडीइंग इट, यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स लाइक योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स. जैसे मुझे याद है मेरा मैसा का एड मैथ्स था, तो हमारी एड मैथ्स की क्लास तब होती थी जब हमारा गेम्स का पीरियड होता था. तो हमारी गेम्स Yes. पूरा ओवर नहीं थी. एंड आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. उस साल मेरा गैप आया एंड आई नेवर प्लेड बास्केटबॉल अगेन. तो फिर देयर आर थिंग्स जो फिर आपको बाद में मसला करती हैं. तो now that we've talked about additional subjects, concluding remarks ये हैं. If you're not somebody who's sure of whether they'll be able to handle the burden, ठीक है, या whether you're actually interested in more subjects or not, we still recommend कि आप classes लेते रहें. देखिए CIs देना या ना देना वो O3 के end की बात है. It's almost like 3 years away. तो आप अभी जाएं,
वी रेकमेंड आप कोई भी क्लास उठाएं अपनी मर्जी की और आप उसकी क्लासेस लेना शुरू कर दें, होम एग्जाम्स दें आराम से जो आपके कॉलेज में पेपर्स होने हैं। और आप अभी ये मत सोचें कि आपने CI देना है नहीं देना, कोई भी इस वक्त उस बारे में, और आप पढ़ लें उसको। यू कैन इंश्योर कि आपको आगे हेल्प करेगा। फिर जिस तरह वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ इफ़ यू आर वीक इन वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, तब भी आप एडिशनल सब्जेक्ट रख लें। देखिए क्लास तो क्लास ही लेनी है ना, और तो कुछ नहीं करना, तो अभी पढ़ते रहें। एग्जाम देना नहीं देना ये 3 साल के बाद की बात है। सेकेंडली, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग टू डू इट, तो रिमेंबर टू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया तो बर्नआउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो चीज़ों को मॉडरेट रखें। एक और चीज़ जो मैं ओ लेवल्स में रेकमेंड करती हूँ ना, मतलब अनलेस you're in O3 और आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, इतना चीज़ों को सर पे सवार ना करें। ओ लेवल्स में देयर इज लोड्स ऑफ टाइम, ठीक है, इतना सिलेबस नहीं होता, यू कैन ऑलवेज 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 कैच अप, ठीक है। और एक ओवरबर्डन की बात होगी। थर्ड एक ये थी कि फॉर दोज ऑफ यू आर प्लानिंग टू परसू मेडिकल लेटर, इट्स नॉट रियली एन इशू अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स हों, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हाउ श्योर यू आर, वक्त का तो कोई पता ही नहीं होता, आप बाद में जाके कहें हमने मेडिकल नहीं करना, तो उसकी को भी अपने दिमाग में रखें। पाकिस्तान में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट से आपको कोई एज नहीं मिलता, इनफैक्ट आपकी इक्विवेलेंस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपके नंबर कम होंगे तो शायद आपकी इक्विवेलेंस कम भी पर हो जाए, लेकिन बाहर अप्लाई करते हुए दे एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। भाई का ये भी है ना कि जिस तरह हमारा ओ लेवल्स है वो दैट्स इक्विवेलेंट टू देयर हाई स्कूल। तो लाइक आपके ओ लेवल्स में जितने सब्जेक्ट्स होंगे वो ऐसे उसको कंसिडर करते हैं जितना कि हाई स्कूल में उन बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ के वो उतने कोर्सेज हो जाएंगे और फिर वो सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ये बच्चा ज़्यादा बर्डन जो है वो मैनेज कर सकता है। और अगर आपके सब्जेक्ट्स आपके फील्ड से रिलेटेड है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि तो इससे ये पता परफेक्ट चलता है, है मतलब कि हाँ। हाँ बच्चा बहुत श्योर है कि उसने यही काम करना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर स्टेम, आपने बायो नहीं रखा, आपने कंप्यूटर साइंस रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, तो आप उसके साथ आईटी पढ़ लें, उसके साथ आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ लें, उसके साथ अगर आपने बायो भी रखनी है तो वो भी कोई मसला नहीं है। बट अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखे हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एक इमेज पोर्ट्रे करता है। हाँ जी, तो दैट्स मोस्टली इट अबाउट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। अब थोड़ी सी हम सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है उनके बारे में बात कर देते हैं। मेरे और मैसा दोनों के पास एडिशनल मैथ थी। अब एडिशनल मैथ के बेशुमार फ़वाइद हैं, ठीक है, मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ लेवल मैथ आपके लिए ईजी पीजी बन जाती है, बिल्कुल मतलब मसला ही नहीं होता ओ लेवल मैथ में। सेकेंडली, ए लेवल मैथ्स का जो पहला साल है, एक्सेप्ट फॉर वन कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट्स आपने एएस में देने होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन कंपोनेंट, मैंने पूरा साल मैथ पढ़ी नहीं, मैंने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। मतलब मैंने एंड में सिर्फ ईयरली प्रैक्टिस की है, टॉपिकल भी मैंने नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुकी थी, मैंने सब पढ़ा हुआ था। तो एड मैथ्स आपको एएस मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इफ़ यूर समबडी जिसको पता है कि उसने आगे A2 में मैथ पढ़नी है, आपको तो लाजमी रखना चाहिए। अगर आप CIs नहीं भी देने, आपको एड मैथ्स लाजमी पढ़नी चाहिए। सेकेंडली, एड मैथ्स का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपने बाद में फर्दर मैथमेटिक्स रखनी हो ना, इट्स लाइक द एडिशनल मैथ इन ए लेवल्स, ठीक है, तो उसके लिए एड मैथ्स एक प्री रिक्विजिट होता है, क्योंकि दे अज्यूम कि ए लेवल मैथ की नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, तो फर्दर मैथ रखने के लिए यू नीड एड मैथ्स इन ओ लेवल्स। मसला एड मैथ्स के साथ ये है कि एड मैथ्स आपका सारा टाइम लेता है। मतलब आई रिमेंबर इन ओ लेवल्स मुझे लगता है मैंने पढ़ी एड मैथ्स है, मैंने और तो सारा कुछ आखिरी, और लिटरली मतलब मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स आखिरी टाइम पे पढ़े, और मैं पूरा साल हर वक्त एड मैथ्स पढ़ती थी, और उसमें भी बाज़ दफ़ा कम नंबर आ जाते थे। तो एड मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा एडवांस्ड होगी, ठीक है, और उसका सिलेबस भी ज़्यादा होगा, बट इट्स रियली 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 हेल्पफुल। तो अगर आपको थोड़ा सा एज भी है ना मैथ्स में, आप इनफैक्ट आप एवरेज भी हैं, तो ले लें। एक तो ये कहना था। ऑल्सो CS जो है वो जिस तरह कि अलीजा ने कहा कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमेशा आपको हेल्प ही करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आपने रखी है और कंप्यूटर साइंस एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लिया, जो कि मैंने भी किया था, तो उससे फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज के अंदर है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल बायो में अगर आपका अच्छा ग्रेड नहीं आता तो CS का ग्रेड भी आप शो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। और आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ी है CS भी पढ़ी है, दोनों का ग्रेड अच्छा है, बट देन यू रियलाइज कि जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, जिस तरह के मेरे साथ ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने बायोलॉजी छोड़ दी, हालांकि मेरा उसमें A स्टार था,
बट चूंकि इंटरेस्ट नहीं था तो अब मैं कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रही हूँ। मसला ये होता है कि कंप्यूटर साइंस अगर आप ए लेवल्स में रखें और ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए सब कुछ कवर करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. Same goes for EM. EM is also an extra subject which really helps you. It doesn't really help you in A levels unless you take up the subject environmental management. But environmental management is a very good look on your profile, on your portfolio. कि उस बच्चे ने पार्क स्टडीज भी पढ़ा है, उसके साथ environmental management भी पढ़ा है. तो क्योंकि दोनों चीज़ें हैं भी सिमिलर, तो environmental management में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्योग्राफी जो है पार्क स्टडीज का हिस्सा वो environmental management जैसा ही है. और ऊपर से एक एडेड आपका ए स्टार भी हो जाता है. तो आई थिंक एडिशनल सब्जेक्ट्स का कोई नुकसान नहीं होता हाँ, अनलेस अगर जैसे हम आपसे बात कर रहे थे मैनेज. ना कि इफ़ यू आर वीक इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और आपको एडिशनल हम्म. में लग रहा है मुझे मसला होगा, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ईएम, क्योंकि ईएम कहते हैं कि ईएम तो है ही ज्योग्राफी, मतलब आपको मसला नहीं होता, आप सीधा पास पेपर्स करते हैं और आप देख देते हैं, और ग्रेड भी सुना है हमने कि उसमें आसानी से आ जाता है. तो इफ़ यू आर गुड एट मैथ, एडिशनल मैथ्स लाजमी लें. इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन मैथ इन ए लेवल्स, लाजमी एडिशनल मैथ्स लें. फिर टू ओपन फील्ड्स, ठीक है, आपको बायो और कंप्यूटर साथ ले सकते हैं. फिर ईएम अगर आप बाकियों में वीक हैं एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू बी अप्लाइंग अब्रॉड और आपको शायद एडिशनल सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो ईएम ले लें. इफ़ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू टेक 10 एडिशनल सब्जेक्ट्स और 11 एडिशनल सब्जेक्ट्स, ईएम को कंसिडर करें बिकॉज इट्स ईजियर. बच्चे अकाउंटिंग भी एज एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, मैसा ने इनफैक्ट लिया भी था, और इट्स रियली हेल्पफुल इन A2. अगर मेरे से मुझे डेबिट क्रेडिट पूरा AS में डेबिट क्रेडिट ही अपना ठीक करी थी, तो आपको वो इशू नहीं होता अगर आपने A2 में अकाउंटिंग पढ़नी है इवेंचुअली. So I think that's it. If you guys have any questions, if you'd like to talk about additional subjects हमारे साथ, if you'd like to talk about additional math in fact, so you can always reach out to us through Instagram, through email, और अगर आप कहेंगे तो हम इस तरह का Zoom session भी arrange कर सकते हैं इंशाल्लाह. और सब्जेक्ट लिस्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे इन जस्ट इन केस यू कैन नॉट एक्सेस इट. या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में डाल देंगे, और आई विल ट्राई कि मैं वीडियो में भी ऐड करवा दूँ एंड पर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी होप यू हैव अ ग्रेट डे. या टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़.